राम कली महला पंजवा। राम कली राग विच पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज ये शुभ पावन उपदेश की बख्शिश करते ने। पंजवें सतगुरां दा रामकली राग विच ये 18वां शब्द प्रारंभ हो रहा है। 17 शब्दों की कथा आप पिछे सरवण कर चुके हो। 18वां शब्द प्रारंभ कर रहे हैं। कोट बिघन नहीं आवह नेरा। ये भाई उस मनुख दे करोड़ा विघन नेड़े नहीं आउंदे। अनक माया ताकी है चेरा। अनेक माया है ताकी चेरा। अनेक प्रकार की माया या अनेक प्रकार की मायकी वस्तु उस मनुख की चेर दासी है। अनक पाप ताके पानी हारा। अनेकां पाप उसदे पानी भरन वाले दास हन। भाव अनेकां ही पाप उस मनुख दे नाश हो गए हैं। जा कौ मया भई करतार। पापां विच प्रवृत्त करन वाले विघन उसदे दास बन जाते हैं। जिस मनुख दे उत्ते करतार जिस दे हथ विच प्रारब्ध रूपी तार है, साड़ी जो भी रोजी रूपी तार जिस करतार दे हथ है वो परमात्मा दी जिहदे उपर मेहर होई कृपा हुई है। ना तो उन्होंने कोई विघन लगता ना कोई उन्होंने पाप लगता है। सो वाहिगुरु की कृपा दे नाल माया भी उसकी दासी बन जाती है। भगती विच विघन नहीं पाउंदी। क्यों जिस दे उपर वाहिगुरु की कृपा हुई है वही सिख है, वही ब्रह्म ज्ञानी है, वही संत है, वही साधु है। सो सिख सखा बंधप है भाई जे गुर के पानी में आवे। अपने पाने जो चले भाई विछड़ चोटा खावे। जोड़ा भागिया वही सिख है, वही बंधप है, वही ते संत भले गुरसिख है। जिन नाही चिंत पराई चुखा। जिसै सहाई हुए भगवान। ये भाई जिस मनुख दा भगवान परमात्मा आप सहायक हुंदा है, आप सहाई हुआ सच्चे दा सच्चा टोआ। अनक जतन वाकै सरंजाम। उस दे अनेकां जतनां दा प्रबंध बंदोबस्त अपने आप ही हो गया है। रहाओ विश्राम देकर फरमान करते ने। करता रखा किता कौन। ये भाई जिसनों करता परमात्मा आप रखता है, फिर प्रभु का किया हुआ जीव किहड़ा है जो उसनों दुख दे सके। भाव कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कीरी जितो सगला भवन। कीड़ी की तरह निम्रता वाले ने सारा ही घर किहड़ा संसार, सारा संसार ही जित लिया है। मन जीता है जग जीत। या इसे प्रकार कीरी जितो सगला भवन। कीड़ी पाप ब्रह्मा कर बिरती वाले ने सारे संसार को मिथ्या निश्चय करन रूप जित लेना कीता है। कीड़ी बादशाह ने सारे भवनों के बादशाह अदनों जित लिया सी। अर्थात अदन बादशाह अपनिया फौजा समेत कीड़ी बादशाह के कोल आया
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਦੋਂ ਕੀੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵੇਂਗਾ। ਤਦੋਂ ਕੀੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਦੋਂ ਕੀੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਛਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾयावी ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੀੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਮਾਨਦਾਤਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਜ ਕੀੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਦਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਰੱਖੈ ਕੀਤਾ ਕੌਣ। ਇਹ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀੜੀ ਜੀਤੋ ਸਗਲਾ ਭਵਨ। ਕੀੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਣੀ ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਵੀਆਂ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਲਤਾੜਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਸੋ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਪੇ ਬਰਛੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਪਾ ਬਰਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਰਛੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਜ ਵੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਰਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। ਭਾਵ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤਾਕੇ ਚਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ
शरीर करके बलिहार कुर्बान जान करिए। तैन ही के जप तप ध्यान। ये भाई उस मनुख ने ही बाणी करके जाप, शरीर करके तप ते मन करके ध्यान लाउना कीता है। अनक प्रकार किया तिन दान। उस मनुख ने ही अनेक प्रकार दा दान देना कीता है। भगत सोई कलमह परवान। ये भाई ਉਹੀ ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਭਾਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਆਮਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਧਾ। जा को ठाकर दिया मान। जिस मनुख ਨੂੰ ठाकुर मालिक परमात्मा ने आदर मान देना कीता या मनन ज्ञान देना कीता, ਉਹੀ इस कलयुग ਦੇ ਵਿੱਚ संत भगत प्रमाण जिन प्रभ ध्याया सही बचखण जंत। सो इयों महाराज साहब सच्चे पातशाह जी कथन करते ने, ਉਹੀ ते संत भले गुरसिख है जे नाही चिंत पराई चुख है। ਉਹੀ संत भगत प्रमाण ਹਨ कलयुग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, जिन्हों आप मालिक ने मान आदर दिता है। साध संग मिल भये परगास। श्रेष्ठ महात्मा जिन्हां दी संगत विच मिल के वो मनुख ज्ञान दे चानण दे सहित हो गए हैं। सहज सुख आस निवास। शांत स्वरूप की प्राप्ति करके उन्होंने सुख प्राप्त होया ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ ਵਿਸਾਸ दिया विसास। हे भाई पूरे सतगुरां ने उन्होंने भरोसा निश्चा देना कीता है। नानक होए दासन दास। सतगुरु साहब जी कथन करते ने कि जिहड़े सेवकां दे सेवक होए हन उन्होंने महाराज जी ने भरोसा दिलासा देना कीता है। नानक होए दासन दास। जिहड़े श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे दासां दे दास होए हन। राम कली महला पंजवा। पंजवें पातशाह सतगुरु अर्जन देव साहब जी राम कली राग विच ये पवित्र 19वां शब्द उच्चारण कर रहे हैं। दोष न दीजै काहू लोग। ये भाई किसी भी लोकां नूं जीवां नूं दोष नहीं देना चाहिए, आप दी गलती नूं आप मनना चाहिए। राजनीतिक बंदा की करता है, मेरी गलती है तो मैं दूजियां दी मढ़ देनी है कि वह भी गलत है वह भी गलत है। सारियां दी अवगुण फरोली जाने ताकि कोई कह ना सके कि तू रौंग है। इंज अपनी गलती लुकाउण खातर असीं दूजियां दियां गलतियां जाहिर करते हैं, उन्हां दी निंदिया करते हैं। पातशाह जी कहते ने आप दी गलती नूं खुद आप मनो, दद्दा दोष न दिओ किसै, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। इयों दोष न दीजै काहू लोग। किसी भी लोग नूं अपनी खातर अपना आप लुकाउण खातर दोष नहीं देना चाहिए। जो कमावन सोई भोग। हैरानी की गल है किसी बंदे नूं तां भला की देना, आपां तां रब नूं भी नहीं छड्डदे। लोग परमात्मा नूं माड़ा कहंदे ने, कोई माड़ा काम हो गया कहना रब ने कराया।
दसो रब ने कदों तुहानूं आख्या सी माड़ा काम करो? जे चंगा काम कीता फिर कहना आपां कीता। ये साडी फितरत है। हौमे नूं हंकार नूं पट्ठे पाउंदा है जीव। कोई भी बुरा कर्म होवे वो दूजे ते मड़ दिंदा कि दूजे ने कराया। बंदे नूं तां कहना परमात्मा ते भी दोष ला दिंदा कि उन्हें कराया। कि हमारे कहंदे जीवां ने पूर्वले जन्मां दे विच जो कर्म कमाए ਉਹੀ फल हुण भोगना करदे हन। आपन कर्म आपे ही बंद। जीव आप ही हंगता दे सहित कर्म करदा ते आप ही उन्हां दे विच ਵੱਝ ਜਾਂਦਾ है। मकड़ी अपने बुने जाल विच आप ही फस के मर जाती है। इउं पलच पलच सगली मोई झूठे तंदे मोह। आवन जावन माया धंध। माया के धंधियां विच लगन करके जीवां दा आउणा जाना भाव जमना मरना बनिया रहिंदा है। ऐसी जानी संत जनी। ये भाई अजिही जो कथा तुहानूं करके सुनाई है ये आम किसी की समझ विच नहीं आई। शांत चित महात्मा जिन्हां ने ही इनू समझिया इनू जानना कीता है। परगास पया पूरे गुर बचनी। पूरन गुरां दे बचनां दी कमाई करके उन्हां नूं ज्ञान दा चानना होया है। जे ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटंत रहाओ। विश्राम देकर फरमान करदे ने। तन तन कलत मिथ्या विस्तार। ये भाई ये जो तन शरीर है धन दौलत है ते कलत इस्त्री आदि का पसारा जो है मारे कहते ये सब झूठा ही है। मिथ्या नाशवंत जिहड़ा दिखदा भी होवे पर होवे भी ना। मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया। मिथ्या हउमय ममता माया। मिथ्या राज जोबन धन माल। मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती असल बस्तर। मिथ्या रंग संग माया पेख हस्त। मिथ्या त्रो मोह अभिमान। मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण। नानक जप जप जीवै हर के चरण। गैवर चालन हार। है वर वर श्रेष्ठ है घोड़े ते वर श्रेष्ठ गै हाथी आदि भी चले जाने वाले नाशवंत हैं। पुराना समा हाथी ते घोड़ियां दा सीगा ते अजकल गड्डियां मोटरां दा है। वधिया तो वधिया महंगियां गड्डियां मोटरां जो साडी आवाजाई दे साधन ने मारे कहंदे ने ये सब चलाए मान हन। राज रंग रूप सब कूरा। राज भाग दा रंग आनंद रूप आकार आदि भी सारे झूठे हन। नाम बिनाए हुए जासी धूरा। उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। परमात्मा के नाम तो बिना ये सारे धूड़ मिट्टी रूप ही हो ही जाते हैं। परम भूले बाद अहंकारी। कई जीव परम दे विच भुले हुए हैं अति व्यर्थी एवें सिर उपर हंकार दी पंड चुकी फिरदे झगड़ा खड़ा कर देंदे ने। सतगुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने आख्या है कि जिहड़े खोते तुहानूं देखदे ने बाहरी खोते ये नकली हैं। असली खोते किहड़े ने? नानक दे नारे असल खार। साहब कथन करदे कि असली खोते वो ने जे बिन गुण गर्भ करंत। गुण वाला तो भला मान करदा ही है
कि मेरे विच वकालत का गुण है, डॉक्टरी का गुण है, इंजीनियरिंग का गुण है, तो होर बड़े गुण ने दुनिया दे विच। ते एक झोला छाप डॉक्टर होंदे ने मेरे वर्गे, ना कोई डिग्री ना कोई पढ़ाई ते ना कोई सर्टिफिकेट, ते बोर्ड चुके तुरी फिरना कि मैथों इलाज कराओ। तो इंज धार्मिक लैन दे विच भी आउंदा जांदा कख नहीं, ते सानू तुसीं आप दे मुखी मनो जी। सो महाराज कहते नानक ते नर असल खर, जे बिन गुण गर्भ करंत। जिहड़े बिना गुणा तो हंकार करते असली खोते अजकल के विद्वान हैं। आप तो एक भी अखर नहीं उड़ता। दसम ग्रंथ के किंतु परंतु, श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ के किंतु परंतु भावें पाठ भी ना कर सकते होर ते गल्लां करनियां बड़ियां उपर दियां। वो महाराज कहते असली खोते हैं। इउं दुनिया हंकार दी बन चुकी फिरदी है। भरम भुले बाद अहंकारी, भरम च भुले व्यर्थी हंकारी लोग झगड़ा करते हैं। झगड़ा करदियां अनंदन गुजरे, अहंकारियां नंदका बैठते। सो महाराज उन्होंने आप दी पिठ दिखाउंदा है। संग नहीं रे सगल पसारी, झगड़े करते ते अभिमानी हो रहे ने। हे भाई ये सारा पसारा नाल नहीं हो जाना। सोग हर कमै देह बिरधानी, गमी ते खुशी दे विच ये जिहड़ी देह है बिरध हो गई है। ताकत वही करतब हानि, कठोर चित वाले पतत पुरखों की उम्र इंज व्यर्थ झगड़े करदियां हुए ही बतीत हो गई है। हर का नाम अमृत कल माहे, ये भाई हरि परमात्मा का नाम इस कलयुग दे विच अमृत रूप है। धना साधु पाहे, ये नाम रूप अमृत का खजाना श्रेष्ठ महात्मा जन सतगुरां दे पास है। नानक गुर गोविंद जिस तूठा, सतगुरु साहब जी कथन करते कि हे भाई गोविंद परमात्मा स्वरूप गुरु जिस उपर प्रसन्न होया है। कट कट रमैया तिन ही डीठा, उसने ही सारे शरीरां विच रमया होया परमात्मा वेखना कीता है। राम कली महला पंजवा, पंजवें पातशाह सतगुरु अर्जन देव साहब जी रामकली राग विच पवित्र प्रमाण करते हैं। पंच शब्द तह पूरन नाद, ये भाई तिथे संत जना की संगत विच पंज बाजे वजदे ने। भाव जोड़ियां सरंदे तऊस रबाब ते कैंसियां आदि की पूरन धुनी हो रही है। इस आवाज़ के नाल पूरा घर भरिया होया, पूरा गुरुद्वारा साहब भरिया होया है। इस प्रकार पंच शब्द तह पूरन नाद, पंच नाम है प्रधान दा। सो गुरु साहब जी हैं गुरां दे शब्द द्वारा पंच चेतन ते पूरन नाद ब्रह्म प्रगट हुंदा है। इस प्रकार पंच शब्द तह पूरन नाद, पंज शब्द केड़े ने? जिस तरह राधा स्वामिया ने वो आपदे पंज नाम मन्ने ने, ओंकार, निरंकार, जोत निरंजन ते सोहंग ते सतनाम, ये पंज शब्द दिंदे हन। सरसे वालियां दे तीन ने, उन्हां दा तां हुण भोग ही पै गया। सतपुरख अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, नामधारियां दा वाहो वाहो है। गुरुद्वारे का की है? वाहिगुरु। वाहिगुरु गुर मंत्र है जप होमै खोई। जोगियां दे पंज शब्द केड़े ने?
तत तंती बित चर्म का कन कासी का जान। ते नाद शब्द घट को कहत श्वास सुखर पहचान। चमड़े वाले वाजे बैंड बाजे हवा तूतियां नफीरियां न बजन वाले हवा दे नाल ते कैं वाले कांसी दे शैने आदक टलियां आदक। तो इंज ये 5 तरह के वाजियां की आवाज़ जिहड़ा जोगी है 10वें द्वार च सुनता है। गुरुद्वारे के 5 वाजे किहड़े ने? साध संगत जीओ 5 शब्द 5 वाजे मूल मंत्र एक ओंकार तो लैके नानक होसी भी सच तक। ते महामंत्र एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक। ते बीजरू मंत्र एक ओंकार इकल्ला ही या नाल सतगुर प्रसाद, ये बीज मरू मंत्र है। ते वाहिगुरु गुर मंत्र है, जप होमे कोई गुर मंत्र वाहिगुरु है। माला मंत्र संपूर्ण श्री जपजी साहब, ये 5 शब्द वाजे 5 शब्द घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित करत हरी है। ये 5 शब्द रूप 5 वाजे गुरु महाराज की हजूरी विच वज रहे हैं। प्रतख ये जिहड़े वाजे ने सचखंड हजूर साहब जद शामां दा दीवान लगता है तो जिहड़े दखणीए ने वो तूतियां नफीरियां ते जिहड़े छोटे नगारे ने ढोलकियां जिहां लैके चन गंगा दे नज़दीक निशान साहब दे हेठां बैठे हुए संगतां दे मन नूं मोहंदे ने, गुरु दी हजूरी च हाज़री लवाउंदे ने। संगतां उन्हां नूं माया की सेवा करदियां। वो खुशी दे वाजे जिहदे घर विआह होवे उहदे घर अगे वाजे वजदे ने, इउं हजूर साहब प्रतख वाजे वजदे, बाकी कीर्तन रूप वाजे वज रहे हैं। अनहद बाजे अचरज विसमाद। संतां दी संगत विच आश्चर्य तो आश्चर्य एक रस नामरू वाजे भी वज रहे हैं। केल करा है संत हर लोग। जो हरि परमात्मा दे लोग शांतित महात्मा जन हरि नाल मिल के खुशियां आनंद मनना करते हैं। पार ब्रह्म पूरन निर्जोग। उन्हां नूं निर्जोग बंधना तो रहत पूर्ण परमात्मा प्राप्त होया या पूर्ण पार ब्रह्म दे विच विशेष करके जुड़े रहिंदे हन। सुख सहज आनंद भवन। वो सुख शांत स्वरूप परमात्मा दे आनंद दे घर होए हन या उन्हां नूं संत जनां दी संगत रूप घर दे विच सहजी सुख स्वरूप परमात्मा दा आनंद प्राप्त हो जाता है। साध संग बैस गुण गावह। ये भाई श्रेष्ठ महात्मा जिन्हां दी संगत विच बैठ के जो परमात्मा दे गुण गाउणा करते हैं। तह रोग सोग नहीं जन्म मरण। उन्हां नूं उत्थे संगत विच अज्ञान आदि दा रोग नहीं हुंदा, विछोड़े दा सो गम नहीं हुंदा ते जमन मरण दा दुख नहीं लगता है। हरख अनंत सोग नहीं पिया, सो घर गुरु नानक को दिया। तै सहज खारे अनेक अनंत पार ब्रह्म के संगी संत। तो इउं ये महाराज साहब ने सूही राग विच भी शब्द उचारे है। सचखंड की अवस्था वाला है। सूही महला पंजवा। सूख महल जाके उच द्वारे, तामे वासै भगत प्यारे। उत्थे संत प्यारे भगत प्यारे वसदे ने, जिथे सुख दे महल हन। ना कोई रोग ना कोई सोग, प्रभ रोग मिटावे नवा नरोआ, नानक रखा आपे हुआ।
ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਊਹਾ ਸਿਮਰ ਹੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਨ ਕੇਵਲ ਮੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਵੋ। ਬਿਰਲੇ ਪਾਵਹਿ ਓਹ ਬਿਸਰਾਮ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਪਾਉ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭਜਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਜਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਿਚਲ ਆਸਨ ਬੇਸੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਡਿਗੈ ਨ ਡੋਲੈ ਕਤਹੁ ਨਾ ਤਾਵੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਾਠ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੜ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਿਗੈ ਡੋਲੈ ਕਤਹੁ ਨਾ ਤਾਵੈ, ਡਿੱਗੇ ਵਿੰਗੇ ਪਾਪ ਕੁਸੰਗ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਇਹੁ ਮਹਲ ਪਾਵੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰੂ ਮਹਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਭੈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਫਾਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਅਫੁਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਇਸ ਹਰੀ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾਰੂਰਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਪਤ ਆਪੇ ਪਾਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪਸਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪੇ ਗੁਪਤ ਆਪੇ ਪਾਸਾਰ, ਆਪ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਸਵਾਦ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਬਿਸਮਾਦ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਰਜ ਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ
ਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਰਤਾ ਸੰਤੋਖ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤਹ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ਪਾਉਤ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਅਨਕ ਬਾਰ ਸੰਤਹ ਡੰਡੋਤ। ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਜੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇਵਤ ਲੰਮੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਮਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਲਹਾਰੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ। ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਿਣਾ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ। ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਰਹਾ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਿਵਹਾਰਾ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਹਮਲਾਹ ਖਾਟਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਸੰਤਨ ਮੋਕੋ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ ਤਉ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ। धर्म राय अब कहाँ करेगो जो फाटियो सगलो लिखा। महा आनंद भय सुख पाया संतन कै प्रसादे। कहो नानक हर सिउ मन मानिया रंग रते बेसमादे। ये असी अपना मन संतां तो बलिहार करते हैं। जाकी ओट गही सुख पाया। जिन्हां संतां जनां दी ओट शरण ग्रहण करके आत्मक सुख प्राप्त करीदा है। राखे कृपा तारी। वो अपनी कृपा मेहर धारण करके रख लेंदे हन। रहाओ विश्राम देकर फरमान करदे ने। संत चरण तोए तोए पीवा। ये भाई मैं अजय शांतचित महात्मा बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गे भाई गुरदास साहब जी वर्गे तिना भाई पुराना भाई जेठा भाई विधि चंद जी वर्गे ब्रह्म ज्ञानी संतां दे चरनां नूं जिहड़े कमलां दी तरह निर्लेप उन्होंने धो धो के ते मैं पीना करदा हाँ। नवें पातशाह तक चरण पौल की मर्यादा रही है। एक निम्रता का सोच के समझना ते बाकी किसी साधु संत के पैर धो के नहीं पीने। गुरुआ ने आप दे पैर धोआ के पीने ते भी मना कर दिता सीगा। खंडे बाटे का महाराज कहते अमृत छको। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਲ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ जिद नहीं करनी चाहिए। निम्रता किसी होर पासे भी जना सकते हैं। जिस मूँह दे विच गुरु साहब का बाणी का खंडे बाटी का अमृत पै गया उहदे च झूठा पैरों वाले पानी मैनू माफ़ करना नहीं पाना चाहिए। क्योंकि महाराज का अमृत जो मूँह च पिया होया ते अमृतधारी नूं झूठ खानी मना है। तो फिर केसां च भी अमृत पिया होया इनू मैं झूठे हथ नहीं लाने। क्यों हुण केवल निम्रता का सोच के समझना। बाकी होर आपां सेवा कर सकते हैं। चरण धूड़ तेरे जन की होवा मतलब निम्रता दे विच साधु संतां दा बचन मनना नाम जपना
यही अमृत चरण अमृत नूं छकना है। संत दरसा पेख पेख जीवा। तत मिथ्या दा विवेचन करन वाले महात्मा जनां दे पूजनीक सज्जे खंबे चरणां नूं नेत्रां विचले विराग दे जल नाल धो धो के शरधा धारण करन रूपी ना करदा। संत जनां दी दर्शन दीदार वेख वेख के ही मैं जिउंदा हां। संत की मेरा मन आस। संत जनां दी मेरे हृदय विच आस उम्मीद है। संत हमारी निर्मल रास। संत जन साडी उजल पूंजी या ब्रह्म विद्या शरदा रूपी उजल पूंजी है। संत हमारा रखे पड़दा। ये भाई संत जना ने साडा पड़दा रख लिया, भाव इज्जत रख लई है। संत प्रसाद मोह कबहू ना कड़दा। संतां जना दी कृपा करके ही मैनू कदे भी झूरा नहीं हुंदा। जदों दा गुरुद्वारे आया हाँ हमेशा खुश रहीदा, कदी भी झूरीदा नहीं है। घरां दे विच तां 100 गलबात निंदिया चुगली ईर्खा जिस दे नाल मन हमेशा उदास रहिंदा। इत्थे किसी काम च दखल ना दिओ, किसी दी गल सुनो ना, किसी दी करो ना, फिर आनंद ही आनंद बागो ही बाग है मन। ते झूरन साडे दुश्मन आपां भला उदास क्यों होईए। नानक भगत सदा विगास सुने दुख पाप का नाश। संत संग दिया कृपाल। संत जनां दा संग दयालु परमात्मा ने सानू धुर तो बख्शिश करना कीता है। संत सहाय भये दयाल। सहायता करने वाले संत जन साडे ते दयालु होए हन। ताइयों कथा कीर्तन सानू प्राप्त होया। पार ब्रह्म हुआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। सुरत मत बुद्ध परगास। संतां दी कृपा करके शास्त्रां दी सुरती सानू सुरत संतां दी कृपा नाल ही आई है। ते जिहड़ी व्यवहारां दी अकल परमार दी बुद्धि दा चन्न ये संतां दी कृपा नाल होया है। गहर गंभीर अपार गुण तास। श्रेष्ठ प्रीति करके बुद्धि अंदर सतगुरां दी सिक्ख्या दा चानन होया। या ज्ञास रूप ब्रह्म दी सिक्ख्या प्राप्त होने करके आत्म शैणी मुद्ध दा प्रकाश होया। वो परमात्मा निरहल डूंगा पारावार तो रहत अते शुभ गुणों का खजाना ते संत जन उसे दा ही स्वरूप हन। नानक जी जंत सगले प्रतपाल। गहर गंभीर अपार गुण तास। ओ परमात्मा निरहल डूंगा पारावार तू रहत दे गुणों का खजाना ते संत जन ओदा स्वरूप ने। राम संत में भेद किश नाही, एक जन कई में लाख रोई। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कश नाहे। जल ते उपजत रंग ज्यों, जल ही विखै समाए। संत गोबिंद का एक है काम, संतां दा ते गोबिंद दा इको ही काम है। जिहड़ा राम है मुक्ति दा दाता, संत दा नाम जपाउंदा है। जी जनता सगले प्रतपाल। इसलिए संतां जिड्डा वड्डा दुनिया में होर कोई नहीं है। महापुरख संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडा वाले एक बार बॉम्बे इंडिया गेट समुद्र के किनारे ते खड़े सन। बाकी सिंह दा शिप ते चढ़ा दिते, वो समुद्र की सैर करन चले गए। महापुरख कहंदे मैं इत्थे खड़ना, तुसीं जाओ। ते सुते सिद्ध समुद्र वाल वेख के अपने आप बोलन लगे। कहंदे ओ समुद्रा, ओ समुद्रा तू मान ना करी कि मैं बहुत वड्डा, मैं बड़ा विशाल हाँ, मैं बड़ा डूंगा। तू साडे संतां तो नहीं विशाल हो सकता।
जो साडे संतां दा ज्ञान है। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडां वाले जद गुरबाणी की कथा करते कपाट खोल देंगे, उन्हां दी कथा रिकॉर्ड है। किते समा मिलिया सो रात 10 बजे एकांत दे विच या अमृत वेले सुनीए, रौले रप्पे तो रहत वातावरण दे विच सही समझ आउंदी है। सो इसलिए जिहड़े उन्होंने सुनने की आदत पा लेंदे फिर होर कुछ सुनने को दिल नहीं करता, क्योंकि वो सारा कुछ जिस तरह मक्खन मलाई कढ़ के पासे रख दी जाती, इस तरह महापुरखों ने तत्त की कथा की है। सो कहते उन्हों का ज्ञान बड़ा विशाल है। हे समुंदर तेरा तो कोई अंत लै सकता मापिया जा सकता, पर जो ब्रह्म ज्ञानियों का ज्ञान है वो बहुत विशाल है। हरेक कथा दे विच गुरबाणी दी उन्होंने वक्खो वक्खरे अर्थ कीते ने। एक जगह कुछ होर अर्थ करने, दूजी जगह कुछ होर करते हैं। सो इंज सो महाराज दी जिन्हां दी कृपा है, कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ओह वधाई है त्यों त्यों हर रंग। नानक संत देख निहाल, जी अजंत सगले प्रतपाल। वो परमात्मा अस्तूल जीवा ते सूखम जीवा आदि सारियां दी पालना करता है। सतगुरु महाराज कथन करते कि संत जनां द्वारा उस परमात्मा नूं वेख के असी निहाल आनंद प्रसन्न होए हाँ। अजय संत जनां दे दर्शन वेख के निहाल होए हैं, जिहड़े जी जंत सगले प्रतपाल सब जियां जनतां दी पालना कर रहे हैं। आ वेखो बाबा हनुमान सिंह दी कृपा ही है, किन्नियां संगतां भरोसा आ रही ने। सो रूह की खुराक कथा कीर्तन मिल रही है, शरीर की खुराक लंगर दे विच है, कोई अंत ही नहीं। बड़े तो बड़ा कोई महाराजा बादशाह भी इन्हां लंगर नहीं वरता सकता। तिनकी बरकत खाहे असंख करोड़े, कमाई एक महापुरख करदा, ओदी बरकत अणगिणत ही करोड़ां ही भोगदे हन। इउं जी जंत सगले प्रतपाल, नानक संत देख निहाल। जिहड़े संत समूह जियां जनतां दी पालना कर रहे, उन्हां दे दर्शन वेख के असीं निहाल हुंदे हां। राम कली महला पंजवा, जां सारे शब्द दे विच संतन दा अर्थ गुरुआं वल लगदा है कि गुरु महाराज जी दे चरण धो के पींदे आ, गुरुआं दे दर्शन वेख के निहाल हुंदे हां। रामकली राग विच ये अगला सो 22वां शब्द सतगुरु अर्जन देव साहब जी उचारण कर रहे हैं। वह रागमई उपदेश बख्शदे ने। तेरा काज न गृह राजमाल, ये भाई ये जोड़ा घर है, राज भाग है ते माल बेपूती है, धन दौलत है इत्यादि इन्हां विचों परलोक लई तेरे किसी भी काम नहीं आना है। तेरा काज न बिखै जंजाल, विषयां अते बंधना रूप विषय तेरे किसी काम नहीं आने। इष्टमीत जान सब शाला, ये भाई प्यारे मित्र आदि सारे भी शाल रूप ये जानना कर। माई माया शाल तृण की अग्न मेघ की छाया, गोविंद भजन बिन हड़का जल। ये मित्र भी शाल रूप ने। जिस वक्त इंसान को खुशहाली है उदों तो बिन बनाए मित्र बनते, जब कोई विपता या कोई बीमारी आके पै जाए तो फिर कोई भी पहचानता नहीं। इसलिए जो प्यारे मित्र भाव देवी देवते मने वो अपनी पूजा में ला के वाहिगुरु तो बेमुख करन रूप चल रहे ने, तो इस गल चंगी तरह जान लेना कर, समझ लेना कर। हर हर नाम संग तेरा चल, ये भाई केवल हरे परे करन वाले हरि परमात्मा का नाम ही तेरे नाल परलोक दे विच चलेगा। जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाभयान दूत जमदल
तै केवल नाम संग तेरा चलै, जह मुश्किल होवै तुम्हारी, हर को नाम खिन माही उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। इसलिए गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे। राम नाम गुण गाए ले मीता, हे मेरे मित्रा परमात्मा दे नाम दे गुण तू गा लेना कर। हर सिमरत तेरी लाज रहै, हरि परमात्मा नूं सिमरदियां ही तेरी लजिया पाता भरोरे आवेगी। हर सिमरत जम कश न कहै, उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु वाहिगुरु। जे तू वाहिगुरु वाहिगुरु करदा रहेगा तो वाहिगुरु नाम नूं सिमरदियां यमदूत या यमराज धर्मराजा भी तैनू कुछ नहीं कह सकता है। रहाओ विश्राम देकर फुरमान करते हन, बिन हर सगल नरारथ काम। ये भाई परमात्मा दे नाम तो बिना सारे काम फजूल दे ने व्यर्थ हन। कि नहीं ना किए काज माया पूरी। माया दे काम साढ़े दादे पड़दादे भी अधूरे छड़ के चले गए, अज तक किसे पूरे नहीं किए, ना साथों होने हैं। इसलिए सो जे तंदे मैं ओए लपटाए उन ते दुगण दड़ी उन माए। ये मन धंदा बंधा कर्म कमाई, जरूरी नहीं भी हत्थां दे नाल। कई बार विला बैठा भी बंदा अपने आप ही हसी जाऊगा ते उही बोली जाऊगा। कई सुते पाई बरडाउंदे ने, मतलब धंधा मन दा है, ये जंजाल मनते हैं। काम करना कोई लामे वाली गल या माड़ा काम नहीं है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ मन खुश ਹੁੰਦਾ, शरीर तंदुरुस्त रहिंदा है। सो ਜਿਹੜਾ मन का काम है मन का धंधा, मारे कहते वाहिगुरु नाम तो बगैर भाई कुछ भी तेरे काम नहीं आने वाला। अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सोना रूपा माटी दाम, सोना चांदी दमड़े मिट्टी रोप ये मिथिया ने, या जदों तेरे दम श्वास निकल गए तदों ये शरीर मिट्टी रूप ही हो जाएगा। ते सोना चांदी आदि नूं समधी होई लै जाणगे। गुर का शब्द जाप मन सुखा, ये भाई गुरां दा उपदेश जपना कर तां तेरे मन नूं सुख प्राप्त होवेगा। ईहा ऊहा तेरो उज्जल मुखा, लोक परलोक दे विच तेरा मुख भी जस रूप उजाले वाला हो जाएगा। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत खाल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। कर कर थाके वड्डे वडेरे, ये भाई दुनिया के वड्डियां तो वड्डे मनुख इस माया नूं इकत्र कर करके थक गए हैं। कि नहीं ना किए काज माया पूरे, पर किसी ने भी माया के काम अज तक पूरे नहीं किए, सब अधूरे ही छड़ के तुर गए हैं। हर हर नाम जपै जन कोए, ये भाई हरे परे करने वाले परमात्मा के नाम नो जोड़ा भी कोई मनुख जपना करता है, ताकि आसा पूरन होए, उस दी सारी आशा सारी इच्छा पूरी हो जाती है। कबीर आशा करिए राम की अवरे आस निराश, नरक पर रहते मन नहीं जो हर नाम उदास। इंदी आशा करता जग मुआ, आशा मरे न जाए
नानक आसा पूरियां सच्चे स्यों चित लाए। हर भगतन को नाम आधार। इसलिए हरि परमात्मा दे भगत जनां नूं परमात्मा दे नाम दा ही आसरा हुंदा। वो दूजे कामां दे विच रुचि नहीं करते। बाबा सुंदर सिंह जी ने बाबे गुरबचन सिंह नूं पुछया, कहंदे जे तैनूं टकसाल की सेवा सौंपी है दस करेगा? दुनिया के 100 काम करने ने कि ये आ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ पढ़ाई का एक काम टकसाल की सेवा करनी? कहंदे जिको काम ही बख्श दिओ। कहंदे लै तैनूं एक काम दिता, ये रुचि रखी, बाकी 100 काम परमात्मा सोते सिद्ध अपने आप ही पूरे करी जाऊगा। आ तुहाडे सामने ही है, जिन्हों मर्जी पुछ के वेख लो भी गुरुद्वारे का हैड ग्रंथी कौन है, तुहानूं पता नहीं लगूगा। लंगर च जाके पुछ लो भी जथेदार कौन है लंगर का, कोई पता नहीं तुहानूं लगूगा। सो मुख सेवादार कौन है, कोई पता नहीं लगूगा। मतलब रल मिल के शहीदां दी कृपा गुरु साहब की बख्शिश दे नाल वेखो कितनी सुचजी सोहने तरीके नाल सेवा हो रही है। तो ये महाराज का आप ही प्रबंध है, रल मिल के एक दूजे के सहयोग के नाल ते कितनी चढ़ती कला दे नाल वेखो थां थाई आपो अपनी जिम्मेवारी ते। तो जिवें घर दे विच बंदा जिम्मेवारी ते काम करदा, इस तरीके दे नाल सारे कार सते सिद्ध संगतां दे सहयोग नाल अपने आप ही निभ रहे हैं। कोई चीज़ वरतदी है तो वो सवेर तो शाम तक वरतदी हुई रहिंदी है, कोई घाटा नहीं। खावे खर्चे रल मिल भाई, तोट ना आवे वध हो जाए। ना वरताउण वालियां दा कोई घाटा कोई था ते ना ही वस्तुआं दा। तो ऐसा ही प्रबंध महाराज सच्चे पातशाह जी का है। अपने आप ही एक कथा कीर्तन, एक अखंड पाठ बाणी का प्रवाह चल रहा, एक काम हो रहा, बाकी दे सब कारज ये महाराज आप दे आसरे नाम दे आसरे करवा रहा है। शांति जीता पार। इस वास्ते महाराज फरमाते ने कि हर भगतन को नाम आधार। हरि परमात्मा दे भगत जनां नूं परमात्मा दे नाम दा ही आसरा है। जन पार। संत जनां ने ये श्रेष्ठ मनुखा जन्म स्वरूप की प्राप्ति करके जितना किया है। गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। हर संत करे सोई परवान। हरि परमात्मा दे संत जन जो भी कुछ करते वो रब नूं प्रमाण हुंदा है। तिनके कर्म धर्म कारज सब पवित्र है। जो बोले हर हर राम नाम रसाते। हरि जो भी कुछ करदा वो संतां नूं प्रमाण हुंदा है। नानक दास ताकै कुर्बान। सतगुरु साहब जी कथन करते कि असीं दासा भाव धारण करके उन्हां संत जनां तो भाई कूरम जी वर्गे संत जिन्हां वेखो बेर उत्ते अंब खवाए गुरु हरराज साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी नूं। पंजवें पातशाह की हजूरी चों वर लिया। महाराज कहंदे भाई कूरम ये तो साडा ही प्रसाद है। तो कहंदा महाराज मैं अंबां दे देश विचों अंबाले जिले चों आया तो चेता भुल गया जी, अंब नहीं लैके आया तो मैं भेटा कर रहा। महाराज कहंदे तू खा ला, कोई नहीं ये प्रसाद है। तो कोई नहीं तेरे अंब भी खावांगे, उत्थे आके खावांगे। फिर गुरु हरराज साहब महाराज ने आख्या लिया भाई अंब। कहंदा जी हुण तां रुत नहीं। महाराज कहंदे उपर वेख, वो बेर उत्ते अंब लग गए। गुरुद्वारा अंब साहब का जोड़ मेला 24, 25, 26 नूं शायद आ रहा है, नज़दीक ही है। सो गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी सो जो करते वो संतां नूं प्रवान है, संत जो करते वो महाराज नूं प्रवान। इसलिए भाई कूरम जी वर्गे गुरमुख जिहड़े लंबिया पिंड दे सीगे गुरु महाराज के चरने थे पुआए। वेखो इलाका तारिया, उन्हां तो कुरबान बलिहार जाते हैं, आ शहीदां तो कुरबान बलिहार जाते हैं। जिन्हें इत्थे
सो पुज के वेखो कित्थों चले ते कित्थे आके शहीदी देते इलाके नूं तार रहे ने। गुरु महाराज की कृपा हो रही है। भुल्ला चुका क्षमा करो जी, अगे तो समत बख्शो। हर संत करे सोई परवान, नानक दास ताकै कुर्बान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।